Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in the subject business studies. From today onwards, we are going to start chapter number 7, that is directing, in our class 12th Commerce. So let we have main topics from this chapter. In this chapter, students, we are going to discuss total 8 main topics in our video lectures. Starting from number 1, directing, introduction, concept, characteristics and importance. Number 2, concept of supervision and functions of a supervisor. Number 3, motivation, its concept and features. Number 4, over here we are going to discuss about the different motivational theories and number 1, that is a Maslow's need hierarchy theory of motivation. Number 5, that is a financial and non-financial incentive. Students, this is another motivational theory. Number 6, leadership. This is a new concept here. Over here we are going to discuss about the leadership, concept, characteristics and its styles. Total, there are 3 styles of leadership. Number 1, that is the authoritative or autocratic style of leadership. Number 2, that is the democratic or participative style of leadership. Number 3, that is laissez-faire or free range style of leadership. After these leadership styles, we are going to have discussion on communication, its concept and elements, as well as formal and informal communication. Let me say that these informal and formal communication are the two classification or types of communication. So guys, total in chapter number 7 directing, if we say that there are basically directing, motivation, leadership and communication. These 4 topics are there. So let me start today's video discussion about directing, introduction, concept, characteristics and importance. Let me see first of all introduction of directing. After having done planning, organizing and staffing, directing begins. Guys, we are aware with management functions, and these functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. So after completion of 3 basic management functions, directing function of management will start. Under directing function, the people posted at different posts are so influenced that they start moving towards the work automatically and finally contribute to the accomplishment of organizational goals. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हैं, राइट? डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर में क्या होगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, उनको इन्फ्लुएंस्ड किया जाएगा, जिनके कारण वो खुद से इनिशिएटली राइट काम करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उनको अकम्प्लिशमेंट की ओर, उनको फिनिश की ओर आगे ले जाएंगे. Hence we can say that it means moving into action, राइट? इसीलिए हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन है. चलिए आगे और डिटेल में देखते हैं. Concept of directing. After the introduction, let me go for the concept. Directing means guiding and supervising the people to do some work. लोगों को गाइड करना, उसको सुपरवाइज करना, कुछ काम करने के लिए, काम करवाने के लिए, राइट? इट इज वन ऑफ द की मैनेजरियल फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म. ये एक ऐसा की फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना रहता है. द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ये एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट रहेगा, लाइफ, पूरे लाइफ के थ्रू आउट रहेगा. देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार
प्लानिंग कर लिया, फिर स्टाफिंग कर लिया, या तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, तो डायरेक्टिंग करने की दोबारा जरूरत नहीं रहेगी। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है एग्जिस्टेंस में, मीन्स शुरू से लेके एंड तक डायरेक्टिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो कंटिन्यूसली रहेगा। Directing can be defined as a managerial function concerned with instructing, guiding, supervising, and motivating the employees to work efficiently and effectively in order to achieve organizational objectives. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसको कुछ समरी के पार्ट में डिफाइन करने की कोशिश की गई है। डायरेक्टिंग ऐसा एक मैनेजरियल फंक्शन है जो इंस्ट्रक्टिंग यानी इंस्ट्रक्शन देने के साथ, गाइडिंग यानी गाइड करने के साथ, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज यानी कि एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करने के साथ, उसको एग्जामिन करने के साथ, उसको मोटिवेट करने के साथ और उसके वर्क को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट करवाने के साथ, राइट, जिनके कारण ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ऐसा एक ये फंक्शन है जहां पर एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्टिंग किया जाता है, गाइडिंग किया जाता है, सुपरवाइजिंग किया जाता है, मोटिवेटिंग किया जाता है, एक्सेट्रा, राइट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द समरी व्हाट इज एग्जैक्टली डायरेक्टिंग मी। नाउ लेट वी हैव द actual definition of directing, right? Definition is given by Kunz and O'Donnell. Now let me see what is directing. Direction is a complex function that include all those activities which are designed to encourage subordinates to work effectively and efficiently. देखो डायरेक्शन ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कई सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जहां पर सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज किया जाएगा उनके वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए जो एक्टिविटीज का डिजाइनिंग किया जाता है उनको डायरेक्शन कहा जाता है। Second definition is given by Ernest Dahl, and definition is directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability। देखो डायरेक्टिंग में क्या मीन्स लोगों को कहा जाता है कि उनको क्या करना है और फिर देखा जाता है, उनके ऊपर वॉच की जाती है कि उनको जो बताया गया है उसी तरीके में वो लोग अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स मेकिंग असाइनमेंट, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर्स, सीइंग दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड, प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफ कोर्स इश्यूइंग ऑर्डर्स। एम्प्लॉइज को ऑर्डर्स इश्यू करना, जॉब के दौरान उनको इंस्ट्रक्शन देना, राइट। अगर उनकी कहीं पर गलती है तो उनको करेक्ट करना, उनको जॉब के रिगार्डिंग प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना, उनको असाइनमेंट अलॉट करना, एक्सेट्रा, जो कुछ भी एक्टिविटीज है वो डायरेक्टिंग में इंक्लूड की जाएगी। सो इट इज अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ लेट वी नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। Students, there are basically 4 characteristics of directing. Number 1, that is directing initiate action. Number 2, directing takes place at every level of management. Number 3, directing is a continuous process. And last one is directing flows from top to bottom. Let me discuss these 4 characteristics of directing in detail. First one is directing initiates action. Directing is considered to be the most important function of management. डायरेक्टिंग को मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कंसिडर किया जाता है। Each manager is required to perform this function along with planning, organizing, staffing and controlling while performing his job.
हर एक मैनेजर को डायरेक्टिंग जो फंक्शन है उनको मैनेजमेंट के अदर फंक्शन के साथ पैरेलली परफॉर्म करना रहेगा। मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को अगर हम लिस्ट आउट करें तो वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब मैनेजर अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है तो उस मैनेजर को मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस के साथ पैरेलली डायरेक्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा। इट इज डायरेक्टिंग विच इनिशिएट एक्शन in an organization which have already been set by other functions। वो सिर्फ एक डायरेक्टिंग है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस को इनिशिएट करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर पाया जाएगा। A manager has to perform the functions of directing at all level of management। It means top level, middle level and supervisory level। मैनेजर को डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे परफॉर्म करना रहता है, राइट। ऐसा कोई भी लेवल नहीं है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या सुपरवाइजरी लेवल हो, जहां पर डायरेक्टिंग जो है वो परफॉर्मेंस में नहीं हो, राइट। सो वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट लेवल्स। नाउ थर्ड वन इज directing is a continuous process। The functions of directing is continued throughout the life of the organization, irrespective of the people occupying managerial positions। People may come and go, but the soul of directing goes on। देखो हर एक फंक्शन की तरह डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बार डायरेक्टिंग कर दिया फिर आगे जाके सबऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉइज को गाइड करने की, मोटिवेट करने की, उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। इट इज अ थ्रू आउट प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, राइट। चाहे एम्प्लॉइज इन आउट हो, राइट, उनका टर्नओवर रेशियो जो है वो भले ही मेंटेन रहता हो, बट डायरेक्टिंग जो है वो हर वक्त चालू ही रहेगा। मीन्स इट इज द शो ऑफ द डायरेक्टिंग गोज ऑन, राइट, वो रुकेगा नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Directing flows from top to bottom throughout the organizational hierarchy। A manager gives direction to his subordinates and takes instructions from his boss। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट से शुरू करके बॉटम लेवल मैनेजमेंट की अगर जर्नी को, हायरार्की को हम यहाँ पर एक बार रिकॉल करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजर्स को मिलते हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को यानी कि ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे पास ऑन करता है, राइट। सो ओवर हियर a manager gives direction to his subordinates and takes instruction from his boss। तो मैनेजर जो यहाँ पर बताया गया है वो मिडिल लेवल पे है, जिनको अपने बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ओर इंस्ट्रक्शंस आएंगे और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बॉटम लेवल की ओर जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे बाय मैनेजर। सो इट इज a flow from top level to bottom level। So guys, over here we have discussed about introduction, concept, definition and characteristics of directing। होप सो यहाँ पर आप किसी को भी कोई डाउट्स नहीं होगा, बिकॉज ऑल ऑफ द टॉपिक्स आर मच फेमिलियर विथ अस, राइट। इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं था जो हमारे समझ में ना आए। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की ओर। टोटल इन योर सिलेबस देयर आर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज गिवन, स्टार्टिंग विथ नंबर 1 इनिशिएट एक्शंस, नंबर 2 integrates employees efforts,
Number 3, means of motivation. Number 4, facilitates changes. And last one is stability and balance in the organization. चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग वन बाय वन। सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्टिंग का ओवरऑल इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। डायरेक्टिंग not only initiate all the actions in the organization but also integrates efforts of the people for achieving the organizational goals. It means that डायरेक्टिंग जो है वो सिर्फ इनिशिएशन के एक्शंस नहीं लेता है बट लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, उनको मर्ज करता है, उनको आपस में जोड़ता है, जिनके कारण ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके। Under directing, managers not only instruct the workers regarding what they have to do, when they have to do, or how they have to do, but they also see to it that their instructions are followed in right way by the workers or not. देखो, डायरेक्टिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस ही देंगे, उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बट एक्चुअल में उन लोगों का टास्क रहेगा कि जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने वर्कर्स को दिए हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन सही तरीके से वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना भी मैनेजर्स का काम रहेगा डायरेक्टिंग के अंडर में। द फॉलोइंग पॉइंट्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जो 5 टॉपिक्स है इंपॉर्टेंस के, वो देखते हैं आगे किस तरह से है। सबसे पहला है इनिशिएट एक्शंस। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएटिंग एक्शंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहला तो है कि डायरेक्टिंग जो है वो लोगों को एक्शन मोड में लाता है, वो इनिशिएट करता है कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किस तरह से करने हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स, राइट। Second one, the employees in an organization start working when they get instructions from their superiors. देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिले हैं तो आप काम क्या करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको काम क्या करना है, और जब एम्प्लॉइज को ये इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसके बाद जो है वो एम्प्लॉइज अपने आप से काम करना शुरू करेंगे। डायरेक्टिंग फंक्शन गाइड्स एंड मोटिवेट सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू कमेंस देयर वर्क बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है एक्चुअल में। डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज को, राइट, कि उनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, राइट। फॉर एग्जांपल, गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स बाय द सुपरवाइजर्स हेल्प्स द वर्कर्स टू अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब गाइडेंस मिलता है, जब क्लैरिफिकेशंस मिलता है डाउट्स पे, या तो जब एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है, तो एम्प्लॉइज जो है, वर्कर्स जो है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए अपना काम शुरू कर सकते हैं, राइट, शुरू कर देते हैं। सो इन दिस वे इट इज द इनिशिएट द एक्शंस, राइट। लोगों को काम करने का नॉलेज मिलेगा, उनको आइडिया आएगा कि उनको एग्जैक्टली क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, हाउ दे हैव टू इनिशिएट द वर्क। सो इट इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिंग। सेकंड वन, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, राइट। डायरेक्टिंग एंश्योर्स इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एफर्ट्स टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ भी गोल्स है उनके अटेनमेंट के लिए, उनके फुलफिलमेंट के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन the jobs of subordinates are usually interrelated and performance of each individual is affected by the performance of others. देखो, इन जनरल अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि सबऑर्डिनेट सारे जो है उनका जो काम है वो आपस में जुड़ा हुआ है,
उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी एक दूसरे के परफॉर्मेंस के कारण अफेक्टेड रहते हैं। यहां पर क्या होता है, डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एंड इन डिफरेंट जॉब पोजीशंस थ्रू सुपरविजन। देखो डायरेक्टिंग क्या करेगा कि जो अलग अलग लोगों के खुद के एफर्ट्स है उनको इंटीग्रेट करेगा, राइट, उसको आपस में जोड़ के रखेगा डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट जॉब पोजीशन पे, राइट, थ्रू सुपरविजन। डायरेक्टिंग जो है वो सुपरविजन का टास्क परफॉर्म करेगा, लोगों के इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगा, उनको इंटीग्रेट करेगा हर एक लेवल पे, हर एक जॉब पोजीशन पे। कंटिन्यू में देखते हैं, रिजल्टेंटली इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी फॉलो एंड द प्लान्ड रिजल्ट्स आर इजीली अचीव्ड। और इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है वो इफेक्टिव और ज्यादा हो जाती है, राइट। जो कुछ भी हमने प्लान किया है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इजीली अपने प्लान को अचीव करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टिंग के कारण इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। Say for example, a manager with good leadership qualities direct the subordinates regarding what, when and how they should do the planned work so that desired results may be achieved। बेसिकली यही चीज होती है कि मैनेजर जो है गुड लीडरशिप क्वालिटी वाला, वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जो कुछ भी प्लान है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने के लिए, उनको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए गुड लीडरशिप क्वालिटी वाला मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो ओवर हियर वी कैन से दैट thus direction integrates employees efforts, individual employees efforts, right, at each level, at each job position. Third importance of direction is means of motivation. Through motivation and effective leadership, directing helps the employees to realize their full potential and capabilities. जब किसी एम्प्लॉय को सही दिशा मिल जाती है, राइट, उनको मोटिवेशन मिल जाता है, तो उनके कारण क्या होगा, वो अपना बेस्ट पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज के साथ अपने काम में लग जाएगा, राइट। जैसे बहुत जाना पहचाना वो एग्जांपल है जब हनुमान जी अपने मेमोरीज को लॉस्ट कर गए थे, राइट। उनको जब सही दिशा दिखाई गई तो उन्होंने क्या किया, राइट, बड़े से समुद्र को पार करके लंका में जाके उनको जो वर्क अलॉट किया गया था, राइट, राम जी की टीम की ओर से, तो वो उसने फुलफिल किया, सीता माता को ढूंढ के निकाला, राइट। उसके साथ साथ रावण को, यानी राम जी के दुश्मन को चुनौती भी देके आया, लंका दहन करके आया, एक्सेट्रा। सो ओवरऑल जब एम्प्लॉइज को भी, राइट, सही दिशा मिल जाती है, उनको मोटिवेशन मिल जाता है इफेक्टिव लीडरशिप के साथ, तो उनको अपनी पोटेंशियलिटीज के बारे में, उनको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है, राइट। दे विल रियलाइज देयर पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ देयर रियलाइजेशन दे विल grow up the organization, or they will convert pre-planned budgets into the results. For example, a manager with good leadership identifies the potentials and capabilities of his subordinates and motivates them to work with full potentials. चलिए इंपॉर्टेंस नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे, facilitates changes. To cope up with the changes in the business environment, directing function guides, initiates and motivates employees in such a manner that helps them to accept the changes willingly. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाय विलिंग कुछ भी काम किया जाए। जब डायरेक्शन का बात यहाँ पर चल रहा है तो डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन गाइड्स, इनिशिएट्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉइज
इस तरह से उनको गाइडेंस दिया जाता है, इनिशिएशन प्रोवाइड किया जाता है, मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है कि जो कुछ भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को एम्प्लॉइज खुद से बाय सेल्फ, बाय विलिंगनेस, ऑन विलिंगनेस इजीली एक्सेप्ट कर सके, राइट। जैसे मान लो कि कुछ हर्डल्स क्रिएट हुए सेल्स के बंदों में, राइट, तो उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, अरे भाई तू तो ये कर सकता है, तेरे से इजीली हो जाएगा, राइट, तू इसमें एक्सपर्ट बंदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाय विलिंग वो एनवायरमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और अपना टास्क परफॉर्म करेगा। Thus, changes can be incorporated and implemented through direction, right? इसीलिए जब चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनको अप्लाइड करवाया जा सकता है with the help of direction. So in this way, directing provides facilitation to the business environment changes. एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है आपको इस फोर्थ इंपॉर्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी वांट्स टू कंप्यूटराइज इट्स अकाउंटिंग सिस्टम बट द एम्प्लॉइज हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट एज दे आर अनेबल टू हैंडल द कंप्यूटर्स। Through directing function, employees are advised that they will be trained appropriately to use different softwares for accounting. Thus, they will find computers to be useful or helpful not only for the organization but also for themselves. This is how, through proper guidance, they become self-motivated and happily accept the changes. देखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात की है यहाँ पर कि जब एम्प्लॉइज कंप्यूटर्स के बारे में अवेयर नहीं है, दे आर फीलिंग हेजिटेशन टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स, राइट, ऑर्गेनाइजेशन उसको डायरेक्ट करेगा, उसको गाइड करेगा हाउ टू यूज द कंप्यूटर्स इन अ प्रॉपर वे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन उनको एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी प्रॉपरली, जिसके कारण वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को या अकाउंटिंग एप्लीकेशंस को इजीली यूज कर पाएंगे, इजीली लर्न कर पाएंगे। जब एम्प्लॉइज को प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है तो उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब उनको सही डायरेक्शन मिल जाता है, मोटिवेशन मिलता है, उनको गाइडेंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, तब वो इस कंप्यूटराइजेशन बदलाव को इजीली एक्सेप्ट करेंगे, हैप्पीली उसको चेंज करने के लिए एग्री हो जाएंगे, राइट। सो दिस वे इट फैसिलिटेट्स चेंजेस। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंस, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। Directing helps in establishing cooperation and commitment among the people. देखो, सबसे पहले ही हम लोगों ने ये चीज देखा है कि डायरेक्शन जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को यूनिफाई करता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पर इनडायरेक्ट वर्ड में दी गई है कि डायरेक्शन क्या करेगा, तो वो लोगों में, एम्प्लॉइज में कोऑपरेशन और कमिटमेंट को एस्टैब्लिश करेगा। Thus, it helps to bring stability and balance in the organization. देखो, जहां पर कोऑपरेशन हो या तो कमिटमेंट हो तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी या तो फिर बैलेंस जो है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज शुड नॉट क्लैश विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को मर्ज करना, इंटीग्रेट करना, वो चीज जब डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिंग जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपस में क्लेश नहीं होता है, राइट। डायरेक्टिंग फंक्शंस इंस्ट्रक्ट, गाइड, सुपरवाइज एंड इंस्पायर्स द एम्प्लॉय इन सच अ मैनर दैट इनेबल्स देम टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देगा, प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है या तो इंडिविजुअल गोल्स है वो
इंडिविजुअल गोल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रेज होता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो सबसाइड हो जाएगा, राइट, और वो आपस में बैलेंस हो जाएगा. So this way directing is important, right, to stability, to provide the stability and balance in the organization. Example दिया है यहाँ पर, a sales manager is of the opinion that the price of a product be reduced so that more orders can be generated, whereas general manager feels that by reducing the price total profit will be reduced. देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है. In such a situation, directing function may try to balance both the opinions by instructing and guiding sales managers to find out other ways to increase sales. देखो सेल्स ऑफिसर्स या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है उन लोगों का ओपिनियन ये रहता है नॉर्मली कि सर हम लोग अगर प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस करेंगे तो हम ज्यादा ऑर्डर ले पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर पाएंगे, राइट. इनके जरिए हम सेल्स को इंप्रूव कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे. इन रिवर्स सिचुएशन जनरल मैनेजर ये फील करता है कि भाई जब हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा, राइट. तो वो क्या सोचता है कि प्राइस रिड्यूस नहीं करना है. इस सिचुएशन में सेल्स मैनेजर जो होता है वो कोशिश करता है कि दोनों सिचुएशंस को बैलेंस किया जा सके. थोड़ा सा प्राइस भी कम कर लो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ाने के लिए हम सेल्स टर्नओवर को भी इंक्रीज कर लेंगे, राइट. जैसा वॉल्यूम बढ़ेगा अपने आप प्रॉफिट जो है वो हम इंप्रूव कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे. सो समहाउ डायरेक्शन जो है वो सिचुएशंस को स्टेबल और बैलेंस करने में सपोर्ट करता है. So guys, in the chapter number 7, directing, in our first video lecture we have discussed about directing introduction, concept, definitions, characteristics and importance. होप सो कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं है. फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स जनरेट होते हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग मैक मीटिंग्स. आप अपने डाउट्स को मैक मीटिंग में मेरे साथ डिस्कशन में सॉल्व कर सकते हो, राइट. एक दो बार वीडियो को देख लो, बहुत इजी टॉपिक है डायरेक्टिंग का ये इनिशियल पार्ट वाला, राइट. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.